Okay, so there is one more topic of assignment model that we are going to discuss right now is the traveling salesman problem. So, what is this process to travel number of cities? Okay, so one salesman is there, and there are n number of cities. So, how these traveling is done? This is based on this problem. Okay, so what is exactly the objective of this problem? So, it is to select such a short route ending in the same city where it begins from, passes through each city only once. So we have an objective is that we want to choose the shortest route. Okay, if a traveler has to, or if a salesman has to travel from city A to city B, so from which route he or she should travel, that the route will be very short, and also he will come back to that city again. Okay, he has to just travel and come back to the city, but there's a condition that he has to just pass the city only once. दैट मीन्स अगर हम ए से बी जा रहे हैं और हम बाया सी एंड डी एंड ई सिटीज़ के थ्रू जा रहे हैं, तो हम हर सिटी सिर्फ एक ही बार ट्रैवल करेंगे. ऐसा नहीं है कि हमारा रूट ऐसा है कि हम ए से बी जा रहे हैं, फिर सी, फिर हमको वापस बी जाना पड़ा, फिर हम वापस कहीं डी रूट पे जा रहे हैं. नो, वी हैव टू गो लाइक ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी, एंड देन फ्रॉम डी वी अगेन कम टू ए. So we are traveling the cities and then again coming to the city where we have started, and the condition is that we have to travel each city only once. So there is one example also here, like we travel from A city to B, then B to C, and then after traveling C we again come to A. Okay, it's just fulfilling the conditions that each city is traveled once. Or we can say like that mm, A to C, then C to B, then B to A. So they can be two or more, two routes. Okay, they can be different, but the condition is that they have been traveled once time only. So we have some cyclic permutations which having a formula called n minus 1 factorial. Okay, we all are familiar with this term factorial. So here n will be what? N will be the number of routes. Okay, so there are three routes. So for example, if we have A, B and C, okay, we have three cities to travel, so 3 minus 1 factorial, 2 factorial, and 2 factorial is 2. That means you have two combinations of the traveling. Then we can do it if there are 4 cities, so we have 4, 4 minus 1, 3, and 3 factorial is 6. So we can have 6 routes. So this is just a formula for knowing that how many routes you can have. Okay. Now, to solve such problem, Hungarian algorithm is best. Okay, when we have this kind of problems, so as we have studied already the Hungarian algorithm, and to solve this problem, this algorithm is found out to be the best algorithm. That is why before traveling salesman algorithm, you must know about Hungarian, that we have already studied. If you don't know, you can go to those videos. Okay. So the constants in traveling salesman problem is that very first, which we have discussed, he cannot travel from one city to the same city. That is infinity. Okay, we cannot do a traveling that you are in city A and you are traveling in the same city. Okay, this can't be happen. क्योंकि ए से ए का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, आपको हर अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल करना है. दूसरी कंडीशन, नो सिटी इज विजिटेड ट्वाइस बिफोर द 4 ऑफ ऑल सिटी इज कंप्लीटेड. ओके, नॉट ओनली 4 बट ऑल द सिटीज दैट आर इंक्लूडेड इन द रूट. दैट मीन्स अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो, तो कोई भी सिटी आप 2 बार या उससे ज़्यादा बार ट्रैवल नहीं करोगे जब तक कि आपने सारी सिटीज़ को कवर कर लिया हो. यू विल बी नो, आपको ये ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा व्हेन वी डू अ क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये पहला वाला ही देखें, तो अगर हम माने कि ए से बी गए हम और बी से सी गए एंड देन ए गए, तो यहाँ पर हर सिटी से एक ही बार ट्रैवलिंग हुई है. अगर आप ए से बी से सी सारे कवर हो गए और उसके बाद अगर आप कोई सिटी को वापस ट्रैवल करते हो, तो दैट कैन बी ओके. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, देन मेक ऑप्टिमम सोल्यूशन. ओके, if not, make complete cycle of routes, then make adjustment in optimal solution to cycle with cycle with minimum increase in the value. Okay, ये कंडीशन ये कहती है
कि स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो हमको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि हमारी सिटीज़ जो है वो सिर्फ एक ही बार ट्रैवल होंगी, एक ही बार विजिट होंगी। एंड दूसरी चीज़ कि कोई भी सिटी ट्वाइस विजिट नहीं होगी। फोर्थ थिंग इज दैट हमें एक ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए। अगर हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आता है, अगर हमको एक ऐसा सोल्यूशन नहीं मिला जिसमें कि हम सारी सिटीज़ एक एक बार ही ट्रैवल कर रहे हैं, हम वापस उसी सिटी पे आ गए हैं, अगर वैसी चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट्स करते हैं कुछ साइकिल में, कुछ असाइनमेंट्स में, ताकि हम एक ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें मिल पाए। और हम अगर एडजस्टमेंट्स करते भी हैं तो हम कम से कम इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू मेक एन मिनिमम इंक्रीज सो दैट वील गेट द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर द रूट्स फॉर द सेल्समैन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सम थ्योरी जो कि आपको पहले पता होनी चाहिए। एंड नाउ वी हैव अ क्वेश्चन हियर, ओके। There is a salesman who visits 5 cities, okay, A, B, C, D and E, okay, and this is the table which is given in your question. So this is from city A, B, C, D, E to city A, B, C, D, E, and here are some values. As you can see, A to A is infinity, B to B is infinity, C to C is infinity, okay, D to D is infinity and E to E infinity, because हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई भी सेम सिटी में ट्रैवलिंग नहीं होगी, ए से ए में आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उसको हमने इन्फिनिटी वैल्यू दे रखी है। सो नेक्स्ट इज इन व्हाट वे, द क्वेश्चन इज इन व्हाट वे शुड बी ट्रैवल टू मिनिमाइज द ट्रैवलिंग कॉस्ट, ओके। देयर इज अ ट्रैवलर, दिस इज अ सेल्समैन हु इज गोइंग टू ट्रैवल ऑल दीज 5 cities, बट इन व्हाट वे ही शुड ट्रैवल दैट the cost of the traveling is minimum, okay. We want that the traveler has a very good experience and also he will be happy because he will having the minimum traveling cost. तो हमको वो minimum cost निकालनी है जो इस प्रॉब्लम से हम निकालेंगे। सबसे पहली चीज़, okay, we have done the same thing that we had done in Hungarian method, okay, row reduction and column reduction. So we have already studied, so we are not going to repeat this. If you have not known about all these Hungarians, you can go to those videos, okay. So after row reduction and column reduction of this matrix, we will get this matrix, okay. This is the new matrix. इस matrix में आपका column reduction और row reduction हो चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम zeros जहाँ जहाँ होते हैं उसमें horizontal और vertical line से उनको cover करते हैं। Then we check minimum number of lines, that is 5, is equals to the order of matrix, okay. So the number of lines is 5 and the order of matrix is also 5, so we can go ahead for the assignments. Assignments B we have already seen in Hungarian method, so I'm not repeating it, but just for small repetition that इधर इस वाली रो में 0 था तो we have given assignment, ठीक है। अब इस वाली रो में हम इसको असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी है, तो उसको हमने क्रॉस कर दिया एंड इस रो में इस 0 का असाइनमेंट दिया। थर्ड रो में एक ही 0 था, वी हैव असाइंड इट। देन फोर्थ रो में ये वाला असाइनमेंट। इन फिफ्थ रो वी हैव 2 zeros, बट बिकॉज यहाँ ऑलरेडी असाइनमेंट है तो हमने इसको क्रॉस करा एंड वी हैव गॉट दिस असाइनमेंट, ओके। नाउ आफ्टर असाइनिंग दी वैल्यूज, नाउ जस्ट सी, ओके। हमने देखा पहले ए से हमारी ट्रैवलिंग हुई ई पे, देन बी से सी पे, सी से वो डी पे गया, देन डी टू बी एंड ई टू ए। एंड इन शॉर्ट अगर हम इसे देखें तो हम जब ए टू ई ट्रैवल हुए, ई पे आए एंड ई से कहाँ गए, ए पे गए। सो हमारी एक जो साइकिल बनी वो ये बनी ए टू ई एंड ई टू ए, ओके। ए से स्टार्ट किया और वापस ए पे आ गए। दूसरी साइकिल क्या बन रही, बी टू सी गए, देन सी पे देखेंगे कहाँ गए हम, डी पे गए, फिर डी से हम बी पे गए, ओके। सो बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू बी, ओके। बट हम वापस फाइनल पोजीशन पे आ गए हैं। देर आर 2 cycles, okay, but you can see here A to E, E to A 1 cycle, B to C, C to D and D to B another cycle। दोनों में रूल सही है कि एक वापस वहीं पहुंच गए, यहाँ पे भी पहुंच गए और एक एक बार ही हमने ट्रैवल किया है। Thus the current solution in the optimal solution, okay, हमारा जो current solution है वो optimal solution है, but this is not a solution of the traveling salesman problem, it violates, okay। भले ये 2 अलग अलग साइकिल्स बन रही हैं बट ये एक साइकिल नहीं बन रही। हमने क्या बोला था, there is a rule which is violating here is the additional constants, okay, that is number of cities
or you can say no city is visited twice before the fourth all of the cities is completed. कोई भी हम सिटी को दोबारा विजिट नहीं करेंगे. ओके, जैसे कि इन अबव इफ यू आर टॉकिंग अबाउट A to E and E to A, so while E is not allowed to follow A and B, C and D are processed. मतलब कि अगर हम इस साइकिल को देखें तो हमने क्या करा, ए से ई गए और वापस ए पे आ गए, बट ये क्या है, सेकंड वाला रूल जो हमने पढ़ा था उसको वॉयलेट करता है कि ई वापस ए पे नहीं आ सकता, इसको पहले हमारी जितनी रिमेनिंग 4 सिटीज़ हैं उन्हें भी ट्रैवल करना पड़ेगा. तो यहाँ वॉयलेट हो गया. सो दस वी एग्जामिन द टेबल फॉर नेक्स्ट बेस्ट सोल्यूशन विच कैन बी obtained बाय असाइनिंग द मिनिमम नॉन ज़ीरो एलिमेंट दैट इज़ 1. ओके, तो हमने क्या करा, वी हैव अगेन जो हमारी पुरानी टेबल थी जहाँ पे हमने असाइनमेंट्स किए थे, उन असाइनमेंट से जो हमको ये 2 रूट्स मिले हैं, तो क्योंकि ये रूट का वायलेशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो हम क्या करेंगे, अब जब हम कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग सोल्यूशन में, तो फिर हम सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मिनिमम नॉन ज़ीरो एलिमेंट को असाइन करेंगे. हमारे ज़ीरोज़ तो ऑलरेडी थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब ज़ीरो का असाइनमेंट ना बनाते हुए हम ज़ीरो के बाद कोई भी नॉन ज़ीरो जो है मिनिमम नंबर हम असाइन करेंगे. एंड वो हमने लिया है 1. ज़ीरो के बाद मिनिमम एलिमेंट जो होता है नॉन ज़ीरो वो है 1. सो नाउ वी मेक असाइनमेंट फ्रॉम A to B, use element 1 instead of 0 and cross 0 in a row A and column B. Assignment from D to E by using element 1. Okay, हम क्या करेंगे, अब जो हमारी एग्जिस्टिंग टेबल थी, दिस वन इज़ आर ओके ओल्डर टेबल. तो हम इसमें क्या करेंगे, अब पहले हमने जो इसको असाइन किया था 0 को, अब उस 0 को हम क्रॉस कर देंगे और जो मिनिमम एलिमेंट था इसमें 1 उसको असाइनमेंट दे दिया. सेकेंड वाले में तो इस 0 को क्रॉस करा, जो पहला वाला असाइनमेंट है इसको हमने असाइन कर दिया. थर्ड वाले में वही 0 रहने दिया क्योंकि 1 है भी नहीं इसमें. फोर्थ वाले में हमने क्या करा, हमने हमारे पास ये 0 था इसको कैंसिल कर दिया. 2 1 थे, लेकिन क्योंकि यहाँ असाइनमेंट हो चुका है तो हमने इस वाले 1 को असाइन किया. यहाँ पर हमने इस 0 को हटा के इस 0 को कर दिया. मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी कोई रो में आप ऐसे बोलेंगे कि हम सिर्फ 1 को ही करेंगे तो 1 को करना ज़रूरी नहीं. अगर ऐसी रो है जहाँ पर पहले असाइनमेंट 0 था तो अब आप असाइनमेंट 1 कर दो. नेक्स्ट रो में अगर आपके इसमें 2 ज़ीरोज़ थे तो आपने अगर जो पहले वाला 0 दिया था असाइनमेंट में उसकी बजाय आप सेकेंड वाले 0 को असाइनमेंट कर दो. ठीक है, और कोई एक ऐसी रो जैसे कि हमारी थर्ड रो है, इसमें अगर सिर्फ एक ही 0 था तो हम उसी को असाइनमेंट रहने देंगे. बट जिन में हम चेंजेस कर सकते हैं दूसरे ज़ीरोज़ को या दूसरे 1s को करके, तो हम उन चेंजेस को करेंगे. नाउ यू कैन सी, अब हम देखेंगे फिर से A to B, B पे आकर फिर हम गए C पे आके फिर हम गए D पे आकर फिर हम गए E, एंड E पे आकर हम फिर कहाँ आ गए, A. So this is the right optimal solution because we are going from A and traveling through all the cities only once and again reaching the same city here. That means it's a perfect solution. So अब हम इसको लिखते कैसे हैं, जब हमको ऐसा solution मिलता है तो हम लिखेंगे A to B गए पहले हम. अब हम ये जो A to B की वैल्यू है ये आपको ओरिजिनल टेबल जो थी हमारी, जो क्वेश्चन में दी गई थी, वहाँ से आपको ये वैल्यू लिखनी है. मैं बता देती हूँ एक बार. दिस वॉज आवर ओरिजिनल टेबल. तो ओरिजिनल टेबल में जो हमारी वैल्यू थी A to B वो क्या थी 2. तो हम यहाँ से ये वैल्यू लिखेंगे. फिर B to C थी 3, देन C to D is 4, D to E is 5 and E to A is 1. तो वही वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी है. देन वी हैव ओके कैलकुलेटेड ऑल ऑफ देम. इट्स कॉल्ड 15 rupees. So it's the minimum traveling cost, and you can also draw a cyclic diagram that we have traveled from A to B, then B to C, then C to D, then D to E, and then E to A. Okay, so this is how we solve traveling salesman problem. अगर आप इस टेबल में भी हमको असाइनमेंट नहीं मिलते, then we go to the next minimum element, which is a non-zero element, and this way we can find out the roots. Okay, आपको बस ये 2 ही चीज़ें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट थिंग इज़ कि हर सिटी सिर्फ एक ही बार ट्रैवल होगी, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप एक सिटी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जब उस सिटी में वापस आएंगे तो आपकी सारी जो बची हुई बीच की सिटीज़ हैं वो सब ट्रैवल्ड होनी चाहिए. जैसे हमने देखा था A से E एंड वापस हम A पे आ गए, भले ही वो साइक्लिक है, लेकिन क्योंकि B और C और D वो प्रोसेस हुई नहीं, वो तो आपने विजिट ही नहीं की, तो ये हम
ऑप्टिमल नहीं मानेंगे. तो हमें एक ऐसा रूट चाहिए जो सारी सिटीज़ को कवर करे, एंड देन वी अगेन केम बैक टू आवर सिटी. Just like the travel from our place to so many other places, and then we come back to our home at the same place. So this is in the same way. So I hope you got it. Thank you.